مسجد الحرام سے نماز فجر دیکھیے روزانہ صبح 5:30 بجے صرف ETV اردو پر. احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ. زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے. 2004 میں جو 36 پارلیمنٹ میں جو نمائندے تھے مسلم، وہ اس بار گھٹ کر کے جو ہے 28 رہ گئے ہیں. صحیح بات ہے کہ 35 سے ہم 28 آئے ہیں. بہت ہی تشویش کی بات ہے. حکومت کی پالیسیاں جو ہے اس کے لیے بہت بڑی وجہ ہے، جس کی وجہ سے مسلم ریپرزنٹیشن دن پہ دن گھٹتا جا رہا ہے. کیا مسلم طبقے میں جو ہے وہ سیاسی شعور کم ہو رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہماری قوم کو بھی یہ دماغ میں رکھنا پڑے گا کہ ہماری اپنی لیڈرشپ ڈیولپ ہو. تو ملائم سنگھ یادو جی ان کی لیڈرشپ کر رہے ہیں، ان کے نیچے کوئی ہے کیا ایسا چہرہ جس کو انہوں نے کبھی اوپر اٹھایا ہو؟ لالو پرساد یادو جی نے کبھی اٹھایا ہو؟ پاسوان جی خود ہی ایک سال میں ایک ایسا ایونٹ آتا ہے، ایک ٹوپی لگا لیں گے، ایک تولیہ ڈال لیں گے اور وہ اپنا فوٹو کھنچواتے ہوئے سب جگہ جائیں گے کہ میرے سے بڑا تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہے. پارلیمنٹ اور اسمبلی میں مسلمانوں کی گھٹتی تعداد پر دیکھیے پروگرام ہمارے مسائل جمعے کی رات 8 بجے اور اتوار دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر. ابھرتے کشمیر کے انچھوئے پہلو، نئی سوچ و فکر، منفرد تہذیب و روایات جن سے پھوٹ پڑتے ہیں کشمیریت کے رنگ. دیکھیے کشمیر ایکسپریس پیر کی رات 8 بجے اور منگل کی شام 6 بجے صرف ETV اردو پر. ETV اردو پر اگلا پروگرام. کشمیر بلٹن کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں بانگر سیمنٹ، سستا نہیں سب سے اچھا. میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں سید احمد جیلانی. پہلے نظر سرخیوں پر. کشن گنگا پاور پروجیکٹ کے ارد گرد دفعہ 144 نافذ کرنے پر بانڈی پورہ میں لوگوں نے کیا کفن پہن کر احتجاج. DC نے کیا. آفن لولاب میں فوج اور ملیٹنٹوں کے بیچ انکاؤنٹر، ایک ملیٹنٹ ہلاک، ہتھیار و گولی بارود بھی ضبط. اور ترال میں پابندی کے باوجود شہتوت کے درختوں کی کٹائی، عوامی حلقوں میں تشویش، جانچ کا مطالبہ. اور خبریں تفصیل سے. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جموں کشمیر کے توانائی میں خود کفیل بنانے کے اپنے عزم کو دہرایا ہے. عمر عبداللہ پنچ میں 37.50 MW پر نئی ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد ایک عوامی ریلی سے خطاب کر رہے تھے. یہ پروجیکٹ 640.40 کروڑ روپے سے تعمیر کیا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاست کو اقتصادی طور پر خود مختار بنانے کے ان کے ویژن میں ریاست میں کم از کم 20,000 میگا واٹ بجلی تیار کرنا شامل ہے. عمر عبداللہ نے کہا کہ ان کی سرکار ریاست میں اگلے 7-8 سالوں میں 9,000 MW بجلی پیدا کرنے کے روڈ میپ پر کام کر رہی ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آزادی کے بعد سے ریاست میں سالانہ 750 میگا واٹ بجلی ہی پیدا ہوتی تھی، مگر ان کی سرکار نے گزشتہ 5 سالوں کے دوران 1750 میگا واٹ کے ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ شروع کیے ہیں. عرصے سے ہم اس دن کا انتظار کر رہے تھے. لگ بھگ کوئی 30-35 سال پہلے اس پروجیکٹ کو کنسیو کیا گیا. کہیں پہ حالات کی وجہ سے، کہیں پہ پیسے کی قلت، کہیں پہ اس پروجیکٹ کے بارے میں کچھ غلط فہمیوں کا یہ پروجیکٹ
इसको शिकार बनाया गया। आखिरकार हालात ने हमें इस बात की इजाज़त दी कि इसका संग बुनियाद रखा गया है और 4 साल के अंदर अंदर हम इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करके 37.5 मेगावाट बिजली जो है रियासत के लोगों को फराहम करेंगे। ये अब हमारी कोशिशों का नतीजा है कि हमने लगभग कोई 1800 मेगावाट के करीब प्रोजेक्ट्स के लिए काम शुरू किया। आफन लौलाब के जंगलात में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान आज दूसरे रोज भी झड़प जारी रही, जिसके नतीजे में अब तक एक मिलिटेंट मारा गया है। फौज ने पुलिस के साथ मिलकर मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान गोलीबारी के साथ साथ एक कमीनगाह को भी तबाह करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक घने जंगलात में मिलिटेंटों के बड़े पैमाने पर तलाश शुरू कर दी गई है, क्योंकि फौज को खदशा है कि कम से कम 3 मिलिटेंट मुहासरे में हैं जो इन घने जंगलात में छुपे बैठे हैं। ऑपरेशन जारी है और फौज की मजीद कुमक इलाके में रवाना कर दी गई है। एसएसपी कुपवाड़ा अब्दुल जब्बार ने ईटीवी से बात करते हुए कहा कि बाकी छुपे मिलिटेंटों की तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। जिसमें हमें एक कामयाबी मिली, कल शाम को एक मिलिटेंट मारा गया। और ये ग्रुप 3 के करीबन लोगों का है, 3 से 4 लोग हो सकते हैं इसमें। तो इलाका घेरा जा चुका है, एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है कल रात से ही। तो उम्मीद है कि इसमें जो लोग फंसे हुए हैं उनको भी हम न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। ये पता चला कि किस तंजीम से? तंजीम की डिटेल्स अभी हमारे पास नहीं है, जब आएंगी तो हम शेयर करेंगे आपके साथ। क्रमकशी की सनत को फरोग देने के लिए जहां हुकूमत ने शहतूत के दरख्तों की कटाई पर पाबंदी आयद की है, ताहम इसके बावजूद भी जिला पुलवामा के त्राल कस्बे में शहतूत के दरख्तों का बेतहाशा कटाव किया गया है। तराल तहसील के बजवानी में कायम शहतूत की नर्सरी में काटे गए ये दरख्त कोई आम पेड़ नहीं बल्कि शहतूत के ग्रीन दरख्त हैं। महकमे सेरीकल्चर की नर्सरी में इन शहतूत दरख्तों की कटाई वजीर आला के तराल के दौरे के 1 रोज बाद ही की गई। महकमे के एहलकार का कहना है कि दरख्तों की कटाई हेलीपैड बनाने के लिए की गई है। शहतूत के दरख्तों को तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए मलबेरी प्रोटेक्शन एक्ट भी अमल में लिए जाने के बावजूद नर्सरी में शहतूत के दरख्तों की कटाई की गई। हालत सपोर्टस जमा कर क्या तुलकुल मनिस्टरस मनिस्टरस तो कुल जहाज वासन तो अमे मूजूब तुलकुल। पुलवामा की तराल तहसील में इस वक्त 400 से ज्यादा अफराद करमकशी की सनत से वाबस्ता हैं। करमकशी की सनत में शहतूत दरख्तों के पत्तों का काफी अहम रोल होता है, जिसके इस्तेमाल से ही रेशम के कुकून तैयार होते हैं। इन दरख्तों की कटाई पर अवामी हलकों में काफी तशवीश पाई जा रही है। जब हमने देखा, जब वहाँ पे प्रोग्राम मुनक्किद नहीं हुआ तो हमने देखा वहाँ पे तूत के बड़े बड़े दरख्त काटे गए हैं, जिन पर न सिर्फ यहाँ तूत की सरकार की तरफ से पाबंदियों के जो कानून थे उसको बालाई तक रखा गया है, बल्कि दूसरी तरफ इन तूत के दरख्तों की वजह से हजारों बेरोजगार नौजवान जो किरमकशी करके इन पर गुजारा करते थे तो उनको काट दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ ये मतलब कि एक तरफ तो ये इस पर रोजगार चलता था, दूसरी तरफ सरकारी कानून को बालाई तक रखकर यहाँ के इस पूरे तूत से बड़े मैदान का सफाया किया गया है। वादी कश्मीर की मईशत में दीगर सनतों की तरह करमकुशी की सनत का भी काफी अहम रोल रहा है। जरूरत इस बात की है कि इस सनत को बचाने के लिए ठोस इक़दाम उठाए जाएं। ईटीवी न्यूज पुलवामा। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने राजौरी के भाने मंडी में एक अवामी रैली से खिताब किया। रैली में बड़ी तादाद में आम लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली सरकार को हर महाज पर नाकाम करार दिया। महबूबा ने कहा कि 5 सालों तक ये सरकार कुछ नहीं कर पाई और अब इलेक्शन करीब आते ही वुज़रा दौरे कर रहे हैं और तरक्याती कामों का संग बुनियाद रख रहे हैं। मैडम मोहतरम तौर पर हमारे सामने आ उनके हमरा यहाँ से मुकुंद करते हैं और शुरुआत हुआ। आज इस सरकार को बने हुए 5 साल हो गए। 5 साल में कुछ नहीं हुआ। अब जब इनको मालूम है पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाले हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, तो अब इन्होंने जगह जगह जाके पत्थर लगाना शुरू कर दिया है अलग अलग कामों के लिए। और इनको मालूम है कि पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद असेंबली इलेक्शन के लिए कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, तो
कहीं ना कहीं जो इनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो इस वक्त सियासत चल रही है वो लोगों को धोखे देने वाली बात है। पूरे मुल्क की तरह मुझे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग भी आने वाले वक्त में पार्लियामेंट में और असेंबली में जो है तब्दीली के लिए वोट डालेंगे और मुझे लगता है तब्दीली में लोगों को PDP एक बेहतर मुतबादिल की शक्ल में नजर आ रहा है। MLA संग्रामा सैयद बशारत बुखारी ने कहा है कि उन्होंने मंगल को शराकवारा करेरी में 16 करोड़ रुपए की वाटर सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह नहीं किया। बुखारी का कहना है कि उन्होंने सिर्फ स्कीम पर हो रहे काम का जायजा लिया। बशारत बुखारी ने कहा कि स्कीम पर काम जोर शोर से जारी है और ये अगले 6 माह में मुकम्मल होने की उम्मीद है। हमने किसी स्कीम का इफ्तिताह या फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह नहीं किया, बल्कि जो स्कीम है हमारी शराकवारा रूरल, ये कुल 16 करोड़ और 40 लाख रुपए में तामीर होगी। इस पे अभी शद्दोमत से काम जारी है। हम उसको मौका करने के लिए आए थे और सबसे अहम बात जो है वो ये है कि हमने खुई इलाके को सोपोर से अलग कर दिया, हमने रूरल पार्ट को अलग कर दिया। इस करके हमने आज जो 12 इंची पाइपलाइन हमारी आती है कलांतरा से, 12 इंची पाइपलाइन वो हमने कट कर दी। अमरगढ़ के मुकाम पे हमने सोपोर टाउन को अलग कर दिया ताकि वो डेड एंड बन जाए और हमारा जो खुई इलाका है उनको पूरी तरह से पानी मिल जाए। इस स्कीम के तहत हम खुई के सारे इलाके जैसे सीर है, संग्रामा है, लालड़ है, अमरगढ़ है, छूरा है, पुतखा है, मुकाम है, शराकवारा है, नोपोरा है, पंजीपोरा है, क्राकशुअन है, इन सब इलाकों को हम, इन सब गाँव को हम इंशाल्लाह पानी फराहम कर देंगे। दही तरक्की के वजीर अली मोहम्मद सागर ने कहा है कि सरकार शहर श्रीनगर के लोगों को बेहतर सहूलियात मैसर कराने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। इन बातों का इजहार आज उन्होंने पाइन शहर में एक डिवॉटिंग पंप स्टेशन का इफ्तिताह करने की बात किया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों में सुरत लाकर उन्हें वक्त पर मुकम्मल करने को यकीनी बनाए। ADC बारामूला ने कुछ दीगर जिले ओहदेदारों के हमरा पटन, टंगमर्ग और कंजर इलाकों के पंचायती मेंबरान से तबादला ख्याल किया। इस मौके पर पंचायती मेंबरान ने उनके इलाकों को दरपेश मुश्किलात को उजागर किया। ओहदेदारों ने पंचायती मेंबरान को यकीन दहानी कराई कि पंचायती राज की हमवार कारकर्दगी के लिए वो पूरा ताउन देंगे। गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि पंचायत को ज्यादा से ज्यादा इख्तियारात मिले और जो 14 महकमों के इख्तियारात अभी तक तफवीज हुए हैं, हमें इंश्योर करेंगे कि ये ग्रास रूट लेवल पर इम्प्लीमेंट हो जाए। और जहां जहां पर मुश्किलात हैं, मैं ये इन चीजों को स्टॉक ले रहा हूं और देख रहा हूं कि कौन सा महकमा कोऑपरेट नहीं कर रहा है, किस महकमे में क्या मुश्किलात हैं। अवामी आवाज नामी एक गैर सरकारी तंजीम की तरफ से आज श्रीनगर में एक तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब का मकसद करप्शन और नशे की लत जैसी बुराइयों के तदारुक में मुताल्लिक तबादला ख्याल करना था। इस मौके पर कश्मीर यूनिवर्सिटी लॉ डिपार्टमेंट के साबिक HOD SM अफजल जादरी मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने नौजवानों को नशे से दूर रखने और रियासत से रिश्वत सताने की लानत के खात्मे के लिए एकजुट होकर काम करने पर जोर दिया। मुंतजिमीन का कहना है कि वो मुख्तलिफ अजला में ऐसे प्रोग्रामों का इनकाद करके लोगों को नशावर अद्वियात के मुज़र असरात से वाकिफ करा रहे हैं। सिविल सोसाइटी फोरम के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और इनको हम सेंसिटाइज कर रहे हैं कि कश्मीर में इस वक्त ड्रग एब्यूज का सिनेरियो कितना है और सिविल सोसाइटी फोरम का क्या रोल है कि वो हमें इस मुहिम में हमारा सपोर्ट करें। जम्मू के बिलावर इलाके के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का इल्जाम था कि इलाके में गरीब शहरियों को दिए जाने वाले मकानात में बड़े पैमाने पर धांधलियां की जा रही हैं। एहतजाजियों ने म्युनिसिपल कमेटी पर इल्जाम लगाया कि उसने बदनवानी और जानिबदारी को खुली छूट दे रखी है। एहतजाजियों ने इस मामले में मुकम्मल जांच कराने की मांग की। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। बोलो क्या, बोलो 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 क्या, सताए रहने वाला धूप सहने वाला आ गया। दूरदर्शन, 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 दूरदर्शन।
टाटा ब्लू स्कोप बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का नया शाखा। इमारतों की छतों की खूबसूरती में एक नया इनकलाब। टाटा ड्यूराशाइन कलर कोटेड टीन। टाटा ड्यूराशाइन की चादरों पर जिंक कोटिंग की गई है जो इन चादरों को जंग आलूदा होने से बचाती है। टाटा ड्यूराशाइन की चादरें बोल्ड रेड, नेचर ग्रीन, कूल ग्रीन और स्मार्ट ब्लू जैसे दिलकश और खुशनुमा रंगों में दस्तयाब है। टाटा ड्यूराशाइन के बाइख्तियार डिस्ट्रीब्यूटर बराए जम्मू कश्मीर हैं एम्पायर एंटरप्राइजेज, नरसिंहगढ़, बटामालू, श्रीनगर। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। में अधिक धुलाई सबके मन को झपके भाई, हर गृहिणी की बनाई शान, कपड़ों में लाए नहीं जान। आज शक्ति डिटर्जेंट कपड़ों की जान, आपकी शान, ताज शक्ति डिटर्जेंट पाउडर। बिल्डर्स, बैंकर्स, पॉलिसी मेकर्स, रियल एस्टेट सेक्टर के स्टेक होल्डर्स की आवाज को देश के सामने लाएगा इंडिया के सबसे भरोसेमंद रियल एस्टेट अवार्ड्स का एक खास इनिशिएटिव, एक चार्टर जो दिखाएगा कि कैसे रियल एस्टेट सेक्टर देश, समाज और आम आदमी को तरक्की की एक नई दिशा दिखा रहा है और हर पल बना रहा है देश की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूत। आर काबुल प्रेजेंट्स CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स 2013। ATP उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। साहित्य अकादमी ने दिल्ली में साहित्य अवार्ड का ऐलान किया। इस मर्तबा 12 जबानों को अवार्ड के लिए चुना गया। कश्मीरी मुसन्निफ मोहिउद्दीन ऋषि की कहानी आना आतश को भी अवार्ड के लिए नामजद किया गया है। यह अवार्ड 11 मार्च 2014 को दिल्ली में मुनक्किद होने वाली पुरवकार तकरीब में अता किए जाएंगे। उर्दू की नज़मों के मजमूए लावा के लिए मारूफ नगमनिगार जावेद अख्तर को साहित्य अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। और इस वक्त हमारे साथ कश्मीरी मुसन्निफ मोहिउद्दीन ऋषि जो मौजूद हैं बात करने के लिए। मोहिउद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत आपको मुबारकबाद कि साहित्य अकादमी ने आपको अवार्ड के लिए मुंतखब किया है आपकी कहानियों को। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि यह अवार्ड आपके लिए क्या मायने रखता है? पहले मैं आपको शुक्रिया करता हूँ। ये एक राइटर के लिए अवार्ड बहुत ही अच्छी बात है और इससे इसको और लिखने की ये ख्वाहिश बढ़ती जा रही है। ये आना आतश, इसमें 35 अफसाने हैं जो कि प्योरली कश्मीर के मुतल्लिक हैं और कश्मीर के लोगों की हालत जार के जितने भी मसाइल हैं उसको मैंने इन कहानियों में उजागर किया हुआ है। ये इस आना आतश किताब को अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी और कई ऐसी इंटरनेशनल जबानों में भी तर्जुमा हुआ है। अरबी में भी एक कहानी तकमील जो इसमें शामिल है उसका भी अरबी तर्जुमा हुआ है और ये बड़ी खुशी की बात है कि इस किताब को साहित्य अकादमी ने अवार्ड के लिए चुना है। जी, आना आतश के लिए आपको अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। अदब और मुआशरे का चोली दामन के साथ रहा है। अदब मुआशरे को और मुआशरा अदब को मुतासर करता है, तो कश्मीरी अदब और कश्मीरी मुआशरे के लिए इस कहानियों में क्या मैसेज दिया गया है? आपने क्या मैसेज दिया है कश्मीरी अदब के जरिए? कश्मीरी अदब कहानी, पहले कश्मीरी में कहानियां बहुत ही कम लिखी जाती हैं। मेरी कोशिश ये रही है कि इन कहानियों में कश्मीर में जितने भी समाजी मसाइल है इसको उजागर करूं और इसकी तरफ लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश की है मैंने, ताकि लोग इन मसाइल की तरफ देखें, इनको परखें और इनको
दुरुस्त करने की कोशिश करें। जी, कश्मीर के नौजवान अदीबों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपको, चूंकि अवार्ड दिया गया है तो काफी राग़िब होंगे नौजवान, उनके लिए क्या मशवरा रहेगा कश्मीरी अदीबों को, नौजवानों के लिए खासकर? कश्मीरी नौजवानों के लिए मेरी ये सलाह है कि कम से कम वो इंटरनेट, फेसबुक, इसके अलावा भी कश्मीरी लिटरेचर की तरफ ध्यान दे और हकीकी शिनाख्त जो अदब में है कश्मीरी समाज की, उसको जाने, पहचाने और लिखने की कोशिश करें। आजकल लोग नौजवानों में लिखने की बहुत ही कम रग़बत रही है। अगर ये इस अवार्ड से, क्योंकि मैं इतना बड़ा अदीब नहीं हूँ कि लोग अट्रैक्ट हो सके, लेकिन ये जो किताब मैंने लिखी है कि इसमें मटेरियल लोगों ने देखा है कि इसमें अच्छी अक्कासी की गई है समाज की, इस वजह से इसको नौजवानों को आगे आने का मशवरा देंगे आप? जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत मोहिउद्दीन साहब हमसे बात करने के लिए। ये थे कश्मीरी मुसन्निफ मोहिउद्दीन ऋषि, जिन्हें उनकी कहानी आनातश के लिए मुंतखब किया गया है साहित्य अकादमी की तरफ से। और आगे बढ़ते, इंसान के अंदर कुछ करने का जज्बा हो तो कोई भी मुश्किल उसकी राह में रुकावट पैदा नहीं कर सकती। इस बात को साबित कर दिखाया है अनंतनाग से ताल्लुक रखने वाले रितेश रैना नामी कश्मीरी पंडित तालिब इल्म ने। रितेश ने 10वीं जमात के इम्तिहान में कश्मीरी सूबे में दूसरी पोजीशन हासिल की। रितेश की इस कामयाबी से उसके वालिदैन काफी खुश हैं। पेश है रिपोर्ट। नामुसाइद हालात के सबब अगरचे बेशतर कश्मीरी पंडितों ने वादी कश्मीर से माइग्रेशन किया, ताहम रितेश के वालिदैन ने इन हालात के बावजूद कश्मीर में ही रहने को तरजीह दी। रितेश का ताल्लुक अनंतनाग के हथमुरा इलाके से है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से लिए जाने वाले 10वीं जमात के इम्तिहान में दूसरा मुकाम हासिल करके रितेश ने यह साबित कर दिया कि मेहनत और कुछ कर गुजरने के जज्बे से इंसान मुश्किल तरीन हालात में भी कामयाबी की मंजिल हासिल कर सकता है। रितेश ने अब तक की तालीम अनंतनाग में ही हासिल की है। रितेश का कहना है कि वो सिर्फ किताबी कीड़ा बनकर नहीं रहते, बल्कि अपनी मुख्तलिफ सरगर्मियों के लिए बाकायदा एक कैलेंडर बनाते हैं। मैं खुद को बुकवर्म या किताबी कीड़ा कहलवाना नहीं चाहता। मैं सच कहना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ किताबों पे ही टाइम स्पेंड नहीं करता था। मैं नेचर में जाता था, मैं पोएट्री लिखता था, इंग्लिश में, उर्दू में लिखता था। जब एग्जाम्स करीब आए तो मैं एक फिक्स्ड टाइम, एक शेड्यूल के हिसाब से अपना टाइम स्पेंड करता था। किताबों पे अपना फिक्स्ड टाइम था, नेचर, बाहर घूमने का फिक्स्ड टाइम था, टीवी देखने का भी फिक्स्ड टाइम था, मेरे एग्जाम्स के दौरान भी और एग्जाम से पहले भी। रितेश का कहना है कि उन्हें मुस्लिम बरादरी से भी काफी प्यार और ताउन मिला। रितेश ने दीगर बच्चों के वालिदैन से भी अपील की है कि वो अपने बच्चों को उनके मुस्तकबिल से मुताल्लिक फैसलों में आजादी दें। जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ सख्ती से मारपीट ना करें, अगर डांटना है तो कम डांटे, क्योंकि इससे बच्चे को प्रेशराइज होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो फर्दर पीछे हो जाता है। प्यार से समझाए, अगर प्यार से ना समझे तो ट्यूशन लगाए, उनकी कॉपीज रेगुलरली चेक करे, खुद चेक करे, अगर वो नहीं पढ़ते हैं खुद चेक करे, ट्यूशन लगाए। इसने बहुत मेहनत की बचपन से है। मुझे ये उम्मीद थी कि कुछ न कुछ करेगा। तो वहाँ के मेजॉरिटी के लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया। ड्यूरिंग अर्ली 90s जब माइग्रेशन हो रही थी तो उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने हमें जानी नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं, जब तक हम यहाँ तब तक आप भी रहो। तो भगवान का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि अभी हम बिल्कुल सेफली रहे। उन्होंने हमारा बड़ा सपोर्ट किया। और रिगार्डिंग एजुकेशन, तो एजुकेशन में भी हमारे बच्चों का उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उनका ख्याल रखते थे। जब भी इधर उधर जाते तो बहुत ख्याल रखा है उन्होंने। वाज़ेह रहे कि श्रीनगर की कौसर जान ने इस इम्तिहान में पहला मुकाम हासिल किया है। दूसरा मुकाम हासिल करने वाले रितेश मुस्तकबिल में डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखते हैं। रितेश रियासत के दूर दराज इलाकों में तिब्बी सहूलियात की मौजूदा हालत से काफी मायूस हैं और वो डॉक्टर बनकर गरीब और मुस्तहिक अफराद की मदद करना चाहते हैं। ईटीवी न्यूज जम्मू। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।
मुझे बवासीर है, खून भी आता है, लेकिन ऑपरेशन से डरता हूँ। वैद ऋषिकाश कल्पफ्लो कैप्सूल और ट्यूब 3 दिन 3 ही खुराक 01125532553। अच्छा, अब कमाल हो गया दोस्त, साथ साथ हमारी शादी हुई और साथ साथ हम बाप भी बन गए। भाई मैं तो अपनी बच्ची की खुशी में लड्डू बंटवाऊंगा, दरगाहों में चादर चढ़ाऊंगा, तुम भी चलो मेरे साथ। अरे नहीं भाई, मैं तो सबसे पहले उसकी पैदाइश का इंदराज करवाऊंगा, यही उसका सबसे पहला तारुफ होगा। भाई इंदराज अफसर के यहाँ पैदाइश और जाए पैदाइश 21 दिन के अंदर अंदर जरूर दर्ज करवानी चाहिए, जिसका सर्टिफिकेट भी बिल्कुल मुफ्त मिलता है। भाई अब मैं तो चला, पैदाइश रजिस्टर में बच्चे का नाम, यौम पैदाइश और जाए पैदाइश जरूर दर्ज कराएं। ईटीवी उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। श्रीनगर के लाल चौक इलाके में नाक़िस ड्रेनेज निजाम की वजह से दुकानदारों और राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ड्रेन के ब्लॉक रहने से सारी गंदगी सड़क पर आने से यहां से आने जाने वालों और खासकर दुकानदारों को मुश्किलात का सामना है। बदबू की वजह से लोग इस इलाके से गुजरने से भी कतराते हैं। दुकानदारों का कहना है कि जहां वो ड्रेन से आने वाली बदबू से परेशान हैं, वहीं इसकी वजह से उनका कारोबार भी मुतासर हो रहा है। ये जो ड्रेन्स हैं, ये तो बेसिकली ड्रेन नहीं है, ये टोटल जो ये होटल लाला रुख है, ये पिछले 3 साल से जब से इन्होंने इसको रिनोवेट किया, जब से ये चालू हो गया, तो ये पानी जितने भी इनके बाथरूम हैं वो सब इसी बाथरूम, इसको ये तो ड्रेन नहीं है, इसी नाली में इन्होंने करेक्ट किए हुए है। जितना भी मलबा ऊपर से निकलता है वो पाइपों के जरिए से इन्होंने इसमें डाला हुआ है। यहाँ इतनी बदबू होती है, इस समय माइनस टेम्परेचर है। अब माइनस टेम्परेचर में खुद आप देख सकते हैं कि आदमी का खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। हाजन बांडीपुरा में पीडीपी के मकामी लीडर यासर कुरैशी की क़यादत में पार्टी वर्करों ने म्युनिसिपल कमेटी हाजन के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि इलाके में सड़कों की खस्ता हालत और दीगर कुछ कामों के लिए MLC नईम अख्तर ने तकरीबन 22 लाख रुपए वागजार किए हैं। ताहम गैर जरूरी सियासी मुदाखलत और म्युनिसिपल कमेटी हाजन की नाक़िस कारकर्दगी से इलाके में कोई भी तरक्याती काम नहीं हो रहे हैं। कस्बा गांदरबल में गाड़ियों की पार्किंग के लिए कोई मखसूस जगह न होने की वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पार्किंग सहूलियात की आदम दस्तियाबी के सबब सड़कों पर जाम लग जाता है, जिसकी वजह से आम लोगों को भी काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। अगरचे कस्बे में कुछ अरसा कबल एक छोटा सा पार्किंग लॉट बनाया गया है, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर इसे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। उधर डिप्टी कमिश्नर गांदरबल ने यकीन दिलाया कि इस पार्किंग लॉट को जल्द चालू किया जाएगा। CRPF की 18 बटालियन लेन कुलगाम की सिर्फ तरफ से आज लामड़ काजी गुंड में एक मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया। इस मौके पर सैकड़ों मरीजों का इलाज मुआवजा किया गया और इनमें मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। CRPF के डॉक्टरों के अलावा मकामी तिब्बी टीम ने भी कैंप में हिस्सा लिया और मुस्तहक अफराद का तिब्बी मुआयना किया। जम्मू कश्मीर भारतीय गुजर महासभा के सदर अशफाकुर रहमान पोसवाल ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। पोसवाल ने राहुल गांधी को रियासत के नौजवानों की बेरोजगारी और गुजर समाज की सियासी और माशी पसमानदगी के ताल्लुक से वाकिफ कराया। उन्होंने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत के फंड का जमीनी सतह पर सही इस्तेमाल मुमकिन नहीं हो पा रहा है। अनंतनाग के पहलगाम इलाके में कायम फिसलन देहात में फौज की 3 राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से ऑपरेशन सद्भावना के तहत बच्चों में स्टेशनरी और किताबें तकसीम की गई, जबकि